सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही बेहतरीन जिक्र गिरियाजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम दोस्तों को या अली मदद। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम आपके साथ शेयर करेंगे आज, जिसका उन्वान है फना फिल्लाह। ये आशिकों की महफिल है, सब जमा हुए हैं, एक ही ख्वाहिश है कि हम अपने इमाम के साथ एक हो जाएं। ये कलाम जो अल्लामा साहब ने लिखा है राजों से भरपूर है। तो हमारे पास कुछ वक्त है, तो आज हम इस पे कुछ बात करते हैं कि मौला के साथ एक होना क्या है। कहते हैं कि तू हूँ में फना हो जा, तू हूँ में फना हो जा, तब गंजे निहान तू है। If you merge in who, you are the hidden treasure. कितनी अजीब बात है कि हम ये हमेशा से सुनते आए हैं कि खुदा ने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था और मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं। खुदा की ख्वाहिश हुई कि वो पहचाना जाए। लेकिन कहते हैं कि अगर तू ए मोमिन सालिक, अगर तू खुदा के साथ एक हो जाए तो तू वो गंजे मख्फी, वो छुपा हुआ खजाना है। यूं हो तो समझ लेना वो जाने जहान तू है। जाने जहान, हमारी जान की जान कौन है? हमारा मौला है। कहते हैं कि if this status you attain, understand that you are the soul of the world. क्या मकाम दिया हम जैसे गरीब नाचीजों को, क्या मकाम दिया इल्म के जरिए से, इस शायरी के जरिए से हमें क्या समझा दिया कि अगर हम इमाम में एक हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं। असरार खुदी को तू है काश समझ लेता। असरार जमा है, प्लूरल है for secrets. So secret and secrets in Urdu it is raz and asrar. Asrar khudi, secrets of yourself. असरार खुदी को तू ए काश समझ लेता. If only you had understood the secrets of your own self. इस आलम शख्सी में एक शाह शहान तू है. You would be the king of the kings in your personal world. जैसे मौला अली ने फरमाया कि तू अपने आप को एक छोटा सा कतरा समझता है, जबकि पूरी कायनात, the whole universe is within you. And if we recognize that universe, who is the king of that universe? हर चीज तुझी में है, बैरून नहीं कुछ भी. Everything is within you, nothing is outside you. है अर्ज़ समा तुझ में और कौनो मकान तू है. The earth and heaven are within you and you are the universe. तू अर्ज में खाकी है, अफलाक पे नूरी है, या जर्रा गुमगश्ता वहाँ शम्स-ए अयान तू है. On earth you are made of dust. On earth you are made of dust. In heaven you are luminous, nurani. Here a trivial particle, there a manifest sun. Who is sun? When you are one with the sun, who do you become? ना कदरी दुनिया से मायूस न हो जाना. ना कदरी दुनिया से मायूस न हो जाना, जा अपना शिनासा हो जब गौहरे कान तू है. Do not despair of depreciation by the world. Moments are never valued or seen or respected in this physical world because this is physical world. What is valued?
these physical things, physical status. It is only those who truly are the seekers and are like-minded, walking on the same path, they will recognize. And how did Imam say? वो जहां देखते हैं रूह दोस्त को देखते हैं, because they are seekers like you, so they see your soul, they don't see your physical body. So here it is said, don't be despair, because this world will not value you. Recognize yourself because you are the mind's gem. जब गौहरे कान तू है, when you are gem in the mind, you are like that. Recognize yourself. So in order to understand this verse, I say that when we are in like-minded group of people, we shine in front of each other because we see our shining. We see the soul. We understand the knowledge, Giyazari, the purity of the deeds. For us, these are very exalted things, and we aspire to get better and better in it every day. But a worldly person will only want to show what belongings they have and how can they increase that. They have nothing common with this group of people. इस आईनाए दिल में एक चेहराए ज़ेबा है, इस आईनाए दिल में एक चेहराए ज़ेबा है, ऐ आशिके मस्ताना वो चेहराए जान तू है. In last class, we were talking about cleaning our heart, making it like a mirror. Same concept has been mentioned here. An exquisite face exists in the mirror of this heart. Mirror of this heart. That mirror is very clean and clear, so that face can be seen. O ecstatic lover, you are that face of the soul. इस आईनाए दिल में एक चेहराए ज़ेबा है, ए आशिक मस्ताना वो चेहराए जान तू है. How amazing it is that when you look into the mirror, it is you yourself. But that who you see, it is not you. That is the Ashik of Mawla. इस आलम शख्सी में सुल्ताने मुअज़्ज़म है. An exalted king is in this personal world. तू उसमें फना हो जा, फिर शाहे ज़मान तू है. Merge in him and become the king of the time. Merge in him and become the king of the time. Is there any status bigger than becoming a king? The requirement, the condition is to become merge with him. आईने जहां दुख है, तो इससे ना घबराना. Pain is the world's constituent. Do not fear it. Who is without pain in this world? Who is without the test in this world? A moment is not afraid of that. Aine Jahan, the law, the way this world lives, it is with pain. Do not fear it. पीरी से ना हो गमगीन, जन्नत में जवान तू है. So all of us who are getting old and we have aches and pains, and we say, oh Mala Bapa, we've gotten old. What is being told to us? Be not be saddened by your aging. You are young in paradise. So what I say, oh, we are all young and beautiful princes and prince. We are never going to get old. तू चश्मे बसीरत से खुद को कभी देखा कर. तू चश्मे बसीरत से खुद को कभी देखा कर. जो हुस्न में यकता है, वो रश के बुतान तू है. Sometimes observe yourself with the inner eye. Sometimes sit in khayal, in reflection. Observe yourself with the inner eye. The one unique in beauty, the envy of idols, is but
you. भरपूर तजल्ली से बातिन है तेरा भरपूर, भरपूर तजल्ली से बातिन है तेरा पुरनूर, हर चेहराए जन्नत तू जब राज जिनान तू है. Your inner self is illumined with full manifestation. Your inner self is illumined with full manifestation. Are we looking for manifestation? When we are illumined, all the manifestations are seen within ourselves. You don't need to go out anywhere. You, the secret of paradises, not just paradise, paradises are every heavenly continents. I have a hard time saying this word. Continents. You, the secret of paradises, are every heavenly continents. तू सारी खुदाई में अजूबाए कुदरत है, तू सारी खुदाई में अजूबाए कुदरत है, तू माजिज़ाए हक है और उसका निशान तू है. You are God's prodigy in his entire Godhead. You are the divine miracle in his sign. Can you imagine? All the time we think we cannot do this. I don't know how to do this. I am not able to do this. I can't remember all the things all the time what we cannot or we are not doing. What does Mala says to us? When we understand the ta'wil of our own hakikat, our own being, the inner world, the human, the most beautiful creation of Allah, is the divine miracle and his sign. You are God's prodigy and his entire Godhead. खुदा की खुदाई इंसान के अंदर है. तू खामाए लाहूती नामाए जबरूती, फिर उसकी जबान तू है और शर्रो बयान तू है. You are the pen of Lahut. Pen of Lahut? How can that be? Lahut is the place of oneness. How can we be the pen of Lahut? Pen is used for universal intellect. But when you are merged with Imam, you can become pen of Lahut. And the book of Jabrut. Jabrut is the world of archangels. Therefore, you are both his speech and its exposition. I remember another verse. When we read these miracles about our own being, and we don't even know that, we don't even realize that. But when we learn and understand and study these things about our own alam-e-shakhsi, about human, being human is such an exalted and elevated status. With certitude of knowledge comes that shukr guzari. शुक्र नेमत के लिए अब चश्मे गिरियां दे, पनाए इश्क हो जाऊं, पनाए इश्क हो जाऊं, ऐसा ईमान दे. This verse is saying, I remember by reading all these verses that give me the tears of gratitude. With this certainty of knowledge, when we realize about our own being, it sounds so strange to our ears. Am I capable of doing all this? Am I? And when we have the certainty of knowledge, it says, yes, you can. And those who believe, they would be shedding tears in gratitude. शुक्र नेमत के लिए अब चश्मे गिरियां दे,
फनाए इश्क हो जाऊं हर लहजा, ये ऐसा ईमान दे. Let me be losing my essence in love, in ishq. I want iman like that, Mawla. अशआरे हकीमाना है दिल में कोई उस्ताद, verses full of wisdom. Is there a teacher in your heart? है जान दिलो हिकमत, है मेरा गुमान तू है. O heart and soul of wisdom, I suspect it is you. So who is that heart and soul? When one is one with the Imam, they don't have their own heart or soul. It is the heart and the soul of the Imam. And Allah Sahib very clearly says, I suspect it is you. And we can imagine at what state he was that he could talk like that. कहता है नसीब तुझको ए आशिके आवारा, तू हूँ मैं फना हो जा तब गंजे निहान तू है. Oh, the wandering lover, Nasir says to you, if you merge in who is the ism which Sufis use for God, you are the hidden treasure. It's a beautiful kalam. Let us all unite in our heart and just sing few verses if I can. What time is it? Bismillahirrahmanirrahim. तू में फना हो जा तब गांजे निहान तू है, तब गांजे निहान तू है. So he's telling us, merge yourself with Mawla, then you become the divine treasure. But when we are singing, you know how we are singing? We are singing as a prayer that Mawla, merge us all in you. Merge us all in you. तू हूँ में फना हो जा तब गांजे निहान तू है, तब गांजे निहान तू है. यूं हो तो समझ लेना वो जाने जहान तू है, वो जाने जहान तू है. असरार खुदी को तू ऐ काश समझ लेता, ऐ काश समझ लेता. इस आलम शख्सी में एक शाह शहान तू है, एक शाह शहान तू है. ना कदरी दुनिया से मायूस न हो जाना, मायूस न हो जाना. जा अपना शिनासा हो जब गौहरे कान तू है, जब गौहरे कान तू है. इस आईनाए दिल में एक चेहरा ज़ेबा है, एक चेहरा ज़ेबा है. है आशिक मस्ताना वो चेहरा जान तू है आशिक मस्ताना वो चेहरा जान तू है. आईने जहान दुख है
जन्नत में जवान तू है, अशिआर हकीमाना है, दिल में कोई उस्ताद है, दिल में कोई उस्ताद है, जानो दिले हिकमत है, मेरा गुमान तू है मेरा गुमान तू है। कहता है नसीर तुझसे, कहता है नसीर तुझको, है आशिके आवारा, है आशिके आवारा, तू में फना हो जा, तब गंजनी हाथ तू है, तब गंजनी हाथ तू है। या मौला, हम अपने आप को मिट्टी देखते हैं मौला, या मौला मेहरबान, हमें तू अपनी ही पहचान दे मौला, शनाख्त दे मौला कि कैसे हम तेरे नूर से जुदा होके आए हैं मौला, और तेरे नूर में वापस जाना है मौला। या मौला मेहरबान, इस इल्मी सफर को मौला हमें तेजी से पार करने की आला हिम्मत दे मौला, बहुत तेजी से चले मौला, और आगे बढ़ते चले जाए मौला, तुझ तक पहुंच जाए मौला, तुझ में फना हो जाए मौला, इसी जिंदगी के अंदर मौला। या मौला मेहरबान, ये तमाम जो हमारी ख्वाहिशात हैं मौला, इनको कबूल करने वाला तू ही है मौला। या मौला मेहरबान, हम तमाम के दिलों के अंदर जो तेरे इश्क के आंसू है मौला, तो उसको कबूल फरमाना मौला। तमाम के दिलों की जो ख्वाहिशात है मौला, इल्म के हवाले से, अमल के हवाले से मौला, तमाम रूहानी बीमारियों से शिफा पाने के हवाले से मौला, या मौला मेहरबान, बस तू उसको पूरा कर दे मौला। दुनिया तो दुख से भरपूर है मौला, हम जानते हैं मौला, इतनी जिंदगी गुजारी है मौला। या मौला, बस तू रूहानी तरक्की दे दे, रूहानी समझ दे दे मौला, दुनिया तो चलती ही रहेगी मौला। या मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान, तू हमारी मदद फरमा मौला, तेरा इश्क इनायत कर, तेरा जिक्र इनायत कर मौला, तेरी याद हमारे दिल में तू मुसल्लत कर दे मौला, हमारे दिलों को तू इतना पाक और पाकीज़ा कर दे मौला कि हमारे दिलों का आईना साफ हो जाए मौला, जहां देखे वहां रूह दोस्त को देखे मौला, किसी में कोई बुराई नजर ना आए मौला, किसी की कोई खामी नजर ना आए मौला, और आए भी तो हमें इससे कोई फर्क ना पड़े मौला। या मौला मेहरबान, यहाँ पर हम तमाम जमा हुए हैं मौला, तेरा नाम लेने, तेरी तारीफ करने, इल्म की समझ लेने मौला। ए मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान, हमारी तू मदद फरमाना, मुश्किल कुशा मौला मेहरबान, हमारी मदद फरमाना। आमीन या रब्बल आलमीन। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम अपनी क्लास का इब्तदा उसी फरमान से करते हैं जो हमने शुरू किया है। 160 फरमान नंबर दारुस सलाम, सितंबर 29, 1899। सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब असल का इल्म ना हो तो क्या हासिल। मौला मुर्तजा अली ने फरमाया कि जिसने खुद को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। जहां देखते हैं वहां रूह दोस्त को देखते हैं। जब तुम आदमी को देखते हो तो आदमी की शक्ल दिखाई देती है, हाथ पैर मुंह आंखें सब दिखाई देते हैं, लेकिन रूह दिखाई नहीं देती। तुम रूह को देखने की
जुस्तजू करो। जब असल का इल्म ना हो तो क्या हासिल। तो असल की जब हम शुरुआत करते हैं, पहचान करने की कोशिश करते हैं असल, तो असल जो है वो हमारा रूह है, जो बातिन है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। और इमाम मौला फरमाते हैं, मौला अली का जो एक दाखला है उसको रेफर करते हैं कि मौला अली फरमाते हैं कि जिसने खुद को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। तो खुद को पहचानना बहुत जरूरी है कि हम जो है सिर्फ हाथ पैर, जो जिस्म है हमारा वो तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में खत्म हो जाना है। फिजिकल लाइफ की कोई अहमियत या कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बहुत टेम्पररी है, ये बहुत टेम्पररी है। जो इल्म से दूर होते हैं वो इस टेम्पररी लाइफ को अपनी जिंदगी का पर्पस बना लेते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, and they have a hard time focusing, looking and thinking about the soul. तो यहाँ पे जिस बात को समझाया जा रहा है कि अपनी खुदी को तो पहचानो कि खुद कौन हो तुम। और वही फरमान की शुरुआत में जिस तरह से इमाम ने फरमाया कि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो तुम अपने बाप दादा का नाम बताओगे, कोई अक्लमंदों का आदम तक पहुंचेगा, फिर क्या, आदम कहाँ से आया, यानी कहाँ तक हमारी पहुंच हो सकती है। ये पहुंच जो है वो इल्म के बगैर नहीं हो सकती है। इल्म के बगैर हम जान नहीं पाएंगे कि किस तरह से जो हमारी रूह इमाम से जुदा होकर आई है तो वो किस तरह से, और वो किस तरह से इमाम के साथ जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि ये क़यामत का जमाना है और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उस जमाने के हिसाब से हमें जो फरामीन किए समझाने के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, वो बहुत ही अजीब व गरीब है। इमाम फरमाते हैं कि तुम जहां देखते हो वहां रूह दोस्त को देखते हो। रूह दोस्त को देखने के लिए पहले रूह की तो समझ चाहिए कि रूह भी एग्जिस्ट करती है, फिजिकल लाइफ ही सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती है, वही ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये किन लोगों की बात हो रही है? ये उन लोगों की बात हो रही है जो इल्म से आशिकी रखते हैं, इल्म का शौक रखते हैं, क्योंकि इल्म वाले ही जानते होंगे कि फिजिकल जो बदन है, जो हमारा जिस्म है, वो तो पानी है, वो तो मिट्टी है, वो तो खत्म हो जाएगा। जो रहने वाला है वो तो हमारी रूह है। जब वो ये बात समझ लेते हैं तो उनको समझ आती है कि आमाल की पाकीज़गी। फिर जब वो आस पास जहां भी देखते हैं तो वो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स को ही ढूंढते हैं। यानी क्या? कि वो उनकी बातों को समझ सकें, उनके जो हैबिट्स हैं उनको एक्सेप्ट कर सकें। एक मोमिन जो इल्म गिनान वाला होगा उसको इल्मी गिनान का शौक होगा, दुनियादारी का शौक नहीं होगा। लोगों के पास टाइम होगा तो कहेंगे चलो मॉल चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। इल्म गिनान वाला बंदा कहेगा भाई मुझे वक्त मिला है, लेट मी स्टडी, लेट मी डू सम जिक्र। तो कितना फर्क हो जाता है एक मोमिन और एक दुनियादार के बीच में। अब ये मोमिन जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? रूह दोस्त मतलब क्या? वो ये देखते हैं कि ये नूर का कतरा हम तमाम के अंदर है। खामियों को नहीं देखते हैं, जिस्म को नहीं देखते हैं। तो कल जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कितनी अजीब बात है कि आपस में हम एक दूसरे को सजदे करें। ये क्या बात है कि आपस में एक दूसरे को सजदा करना? सजदा तो इमाम को किया जाता है, हम एक दूसरे में कैसे कर सकते हैं सजदा? लेकिन जो रूह दोस्त होगा वो इस बात को समझ जाएगा विदाउट एनी डिफिकल्टी, क्योंकि वो तो देख ही रूह को रहा है, जिस्म को देखता ही नहीं है। वो जिस्म देखे तो जिस्म में तो अजाजिल को भी यही मुश्किल हुई थी। उसने आदम के जिस्म को देखा और कहा मैं कैसे झुकूं भाई, ये तो मिट्टी का है और मैं तो ऊंचे दर्जे का हूं। ऊंच नीच की बात की, अपने आप को बड़ा गिना, आदम को छोटा गिना। तो यही बात है कि जो मोमिनीन इल्म के अंदर आगे बढ़ते हैं वो जिस्म को नहीं देखते हैं, ये बड़े वो छोटे ऐसी चीजें नहीं करते हैं, रूह को देखते हैं, क्योंकि वो रूह के दोस्त होते हैं। जब आपस में एक दूसरे की रूहों को देखते हैं तो दिल भी साफ होते हैं, एक दूसरे की खामियों को छुपाते हैं। क्यों?
कि उसकी खामी मेरी खामी है, उसकी अच्छाई मेरी अच्छाई। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि दूसरों की खामियों के बारे में कभी बात नहीं करते, क्योंकि कोई खुद की बुराई कैसे करेगा। अगर हम तमाम ईमान की रूह के साथ एक हैं, तो खुद की रूह को कोई कैसे बुरा कहेगा, खुद की रूह को कोई कैसे तकलीफ देगा। इसीलिए तमाम मोमिनीन मिलके एक दिल है। इमाम ने फरमान में क्या फरमाया कि अगर तुम 3 हो और तुम्हारे तीनों के दिल एक हो तो तुम 30 लाख लोगों का काम कर सकते हो। बैतुल हाल के फरमान में हम पढ़ रहे थे ट्यूसडे को, 30 लाख लोगों का काम कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ कि दिल एक थे, एक दूसरे की बुराई को नहीं देखते थे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को देखते थे, रूह को देखते थे। तो ये बात समझने की है कि जब हम ये फरमान पढ़ते हैं कि रूह दोस्त को देखना, मतलब आपस में एक दूसरे की रूहों को देखना, उस रूह को देखते हुए हाथों को चूमना, पाँव को चूमना, सजदा करना, तवाफ करना, कुर्बान मैं उस रूह पे जिससे आप चल रहे हैं, जिंदा हैं, बात कर रहे हैं, मैं तो उस रूह का आशिक हूं जो आपके अंदर है। तो ये होती है रूह की दोस्ती। जो शख्स रूह का दोस्त होगा वो किसी की खामी देख ही नहीं सकेगा, किसी की बुराई कर ही नहीं सकेगा। तो खुद ब खुद आमाल की पाकीज़गी हो गई। कितना आसान हो गया आमाल को पाक रखना। किसके लिए? जो अपने आप को इल्म के साथ रखता है। जो इल्म के साथ रखता है वो इस बात को समझता है कि जो मेरा भाई है सामने, मेरी बहन है, जिस्म है, हम सब नारियां हैं, हम सब औरतें हैं। किसकी? मर्द मुतल्लक इमाम की। हम सब दासियां हैं उस इमाम की। तो हम तमाम दासियां हैं, हम तमाम में अजीब व गरीब खूबियां हैं और बुराइयां हैं। लेकिन जब हम तमाम एक ही इमाम के चाहने वाले हैं, उसी के रूह का कतरा है, तो हम आपस में कैसे नाइत्तफाकी करें, कैसे एक दूसरे की बुराई करें, कैसे एक दूसरे की गीबत करें, कैसे हम झगड़े करें, कैसे हम दिलों के अंदर नापाकीजगी को रखें। हम तो एक सिंगल सोल से हैं, उस सिंगल सोल से जाना है वापस हमें। रूह के दोस्त हैं। इतनी मिठास, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए जब हम इस लाइन को पढ़ें कि जहां देखते हैं वहां वो रूह दोस्त को देखते हैं। जब तुम आदमी को देखते हो, अब यहाँ पे क्या बात की इमाम ने कि जब तुम इंसान को देखते हो, आदमी को देखते हो, तो तुमको उसकी शक्ल दिखाई देती है, हाथ, पैर, मुंह, आंखें, फिजिकल बॉडी दिखाई देती है, लेकिन रूह दिखाई नहीं देता है। तो अगर कोई इंसान जो इल्म में नहीं है, जमात में है, मोमिन है, मेंबर है, लेकिन उसके पास इल्म नहीं है, तो बस जिस्म ही को देखते हैं, आंखों को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, जिस्म की चीजों को देखते हैं, रूह को नहीं देखते हैं। लेकिन इमाम फरमाते हैं कि तुम रूह को देखो। तो लिटरली इन्हीं 2 लाइन के अंदर इमाम एक्चुअली 2 ग्रुप से बात कर रहे हैं। एक जो दुनियादार है, जिस्म को देखता है, कि मौला कहते हैं उनसे जो इल्म के आशिक हैं, जो तरक्की के आशिक हैं, जो रूहानी तरक्की, अकलानी तरक्की चाहते हैं, इमाम फरमाते हैं तुम रूह को देखने की जुस्तजू करो, कोशिश करो, हिम्मत करो, चाहो। जो इंसान चाहता है ना, उसको क्या कहते हैं, हम दुआ करते कि मौला कि उनकी तमाम नेक उम्मीदों को पूरा कर। चाहे तो सही हम इस फरमान को पढ़ते हुए कि या मौला मुझे रूह की देखने की हिम्मत दे, ताकत दे, तो हमारी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी, अच्छी अच्छी ख्वाहिशात करेंगी। तो मोमिन जो है वो हमेशा रूह को देखने की कोशिश करता है। जब रूह को देखता है, एक मोमिन की रूह को, तो उसके दिल के अंदर खुद ब खुद इश्क आता है, मोहब्बत आती है। दिल चाहता है उसके हाथ चूमे, पैर चूमे, उससे गले लगे, उसको प्यार करे। क्यों? कि रूह इतनी खूबसूरत है कि दिल भरता ही नहीं इसको प्यार करने से। ये रूह को देखने की खूबी है। फिर इमाम फरमाते हैं तुम्हें अभी रूह का ख्याल है या बंदगी करके सुख हासिल करने का ख्याल है? ये इमाम ने सवाल करके झंझोड़ दिया। लिटरली इमाम है शेख नसब बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन
कि when you are doing बंदगी, are you seeking worldly pleasures, peace pleasures, or you are thinking of your soul? इमाम बता रहे हैं कि दो कैटेगरीज हैं। एक ग्रुप है जो हमेशा जब इबादत करता है तो वो रूह की तरक्की के लिए, रूह की बेहतरी के लिए कर रहा होता है, जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो क्या करता है, इबादत करके सुख कि मौला मेरे बिजनेस में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, मौला बिजनेस की मुश्किल आसान कर दे तो, या ये हेल्थ का प्रॉब्लम है ये ठीक कर दे तो। क्या हम फिजिकली चीजें मांग रहे हैं? ईमान तो है वो देने वाला है, वो देगा। तो क्या हुआ, फिजिकल मुश्किल आसान हो गई तो जिंदगी में थोड़ी जिंदगी में सुख आ गया। माँ बोलते हैं ठीक है तुमको ये वाला सुख चाहिए था, ले लो, ये सुख टेम्पररी है। जो अक्लमंद है वो मंसूर के रास्ते चले, यानी कि उन्होंने रूह का ख्याल किया। फिर फरमाते हैं इंसान का दर्जा बुलंद है। अभी हमने इस कलाम में पढ़ा कि इंसान का दर्जा बुलंद है, मगर वो खुद को अपने हाथ से नीचे गिरा देता है। खुद को अपने हाथ से, अपनी नादानी से, अपनी इग्नोरेंस से, अपनी लैक ऑफ नॉलेज से वो अपने आप को गिरा देता है। वो ये कहता है कि सब मुझे करना है, मुझसे नहीं होता है, मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है, या मेरे लिए ये मुश्किल है, या मुझे तो याद नहीं रहता है, और मुझे तो बहुत बॉडी में दुखता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तमाम चीजें भाई मैं। जो मोमिन सालिक होता है वो कहता है मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ भाई, मुझे तो जो है फरमान की फरमान बरदारी करनी है। कैसे होगी, ये बदन कैसे बर्दाश्त करेगा, ये मौला बर्दाश्त कराएगा, मुझे तो करना है। जिस्म जो है वो इस्तेमाल करने के लिए है, आराम करने के लिए नहीं है। जिस्म जो एक वैसा हमको दी गई है जैसे कोई किश्ती में बैठा हो। ओके, इफ वी आर गोइंग फॉर बोटिंग, हम बोट में बैठे हैं और बोट बहुत खूबसूरत है, न्यू बोट बहुत ही अच्छी है। बोट कितनी अच्छी है, बोट कितनी अच्छी है, अरे भाई बोट का काम है उसको चलाओ पानी में, उसको आगे बढ़ाओ, बोट को देख के संभाल के रखें, खराब नहीं हो जाए, उसको पेंट करें, उसको अच्छे से रखें, सिर्फ देखते रहें बोट कितनी अच्छी है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको पानी में, दरिया में उतरना है, बीचों बीच समंदर में जाना है और चलना है। लेकिन हमें मोहब्बत सिर्फ फिजिकल बोट से, इसको देखने से है, तो वो तरक्की कैसे होगी, सफर में आगे कैसे बढ़ेंगे। वही मिसाल हमारी हो जाती है कि हमारा जो जिस्म हमें दिया गया है वो कसड़ी के लिए, रियाजत के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको सजा के, सिंगार के, आराम से बिस्तर में रखने के लिए नहीं है। इंसान का दर्जा बुलंद है, मगर वो खुद को अपने हाथ से नीचे गिरा देता है। तुम में से कोई कोशिश करे कि हम पीर सदरदीन, पीर शम्स और मंसूर जैसे बने, तो तुम ऐसे बन सकते हो, तुम इनसे भी बुलंद हो सकते हो। ये फरमान रेवोल्यूशनरी फरमान है, इनकलाबी फरमान है कि हमारे लिए पीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। मां फरमाते हैं, फिर कहते हैं कि पीर, फिर रुक क्यों जाते हो, पीर से भी आगे बढ़ सकते हो। पीर के आगे कौन होता है भाई, इमाम होता है। तो इमाम क्या फरमा रहा है उनको, कभी हमने सोचा, कभी हमने ख्याल किया क्या पीर से भी आगे बढ़ सकते हैं मौला? पीर के आगे तो तू है मौला, तुझसे कैसे आगे बढ़े मौला, तू तो हमारा आका, हम तो तेरे गुलाम हैं। हमारा आका ऐसा बादशाह है जो दान में दूसरों को बादशाह बनाता है। हमारा बादशाह, हमारा आका ऐसा बादशाह है जो दान में दूसरों को बादशाह बनाता है। लेकिन ये अक्ल, ये समझ लोगों में होनी तो चाहिए। रूहानियत में दर्जात जो हैं वो सीढ़ियां खुली हुई हैं उन लोगों के लिए जो आगे जाना चाहते हैं। ये बहुत इनकलाबी फरमान है। जो लोग इल्म से इन बातों को नहीं समझेंगे उनके गले ये बात ही नहीं उतरेगी भाई कि हम कहाँ पीर बन सकते हैं। हाँ, जाओ अगेंस्ट इमाम के फरमान के, इमाम तो फरमा रहे हैं, जब इमाम फरमा रहे हैं तो क्यों यकीन में कमी है भाई।
हाँ, हमें खामियां हैं, किसने मना किया है कि खामियां नहीं है? इमाम रास्ता भी बता रहे हैं, इमाम समझा भी रहे हैं कि उन खामियों को कैसे दूर करना है। सुस्ती हमारी है, अमल नहीं करना हमारा है, हमारे हाथ में है। इमाम ने फरमाया दर्जा बहुत बुलंद है, लेकिन इंसान अपने आप को अपने हाथ से नीचे गिरा देता है। इंसान अगर चाहे तो पीर सदरुद्दीन, पीर शम्स और मंसूर जैसे बन सकते हैं। तो कितनी अजीब बात है, अगर हम पीरों की गिनार पढ़ते हैं, मंसूर की कहानी सुनते हैं, हम भी ऐसे हो सकते हैं। कभी ऐसा सोचा है? तो ये गुरूर की बात नहीं है, ये इमाम की फरमान बरदारी की बात है। इल्म से, समझ के, आजिजी से, हैरत से कि मौला क्या ये मुमकिन है मेरे लिए कि मैं भी ऐसा बन सकता हूँ? तो इमाम फरमाते हैं तुम तो उससे भी आगे पहुंच सकते हो। या मौला, हुदूद दीन की सीढ़ियां तो आज ही समझ में आई हैं, पहले कहाँ समझ आती थी? कोविड से पहले तो हुदूद दीन का लफ्ज भी नहीं सुना था हमने। इमाम ने डायमंड जुबली में दाई का टाइटल भी दे दिया। दाई के ऊपर जो होता है वो पीर होता है, वो पीर के ऊपर इमाम होता है। तो कितनी अजीब बात है मौला, ये क्या मुमकिनात है हमारे लिए? ये जवाब है यहाँ पे लिखा हुआ इमाम का। कब? 1899, 1899 का फरमान। 2021 में बैठे हुए हम, एंड ऑफ 2021। कितना वक्त लगेगा हमें यकीन करने में, अमल करने में, इल्म को समझने में, जब तक हम आमाल की पाकिजगी में पक्के नहीं हैं, फरमान बरदारी में पक्के नहीं हैं, हमारे तरीके को इल्म से नहीं समझेंगे, तो शरीयती लोगों की तरह कॉन्क्रीट तरीके से तरीके को पालेंगे, और जो दीन के अंदर जो मेवे हैं उसको समझना, उसको पाना, वो हम पा नहीं सकेंगे। फिर इमाम फरमाते हैं हम नहीं कहते कि तुम कैसे बनोगे, इमाम नहीं बताते हैं कि तुम कैसे बनोगे, मगर हमें सब मालूम है, मगर हमें सब मालूम है अगर तुम अपने दीन के रास्ते पर मुस्तकीम होकर चलोगे तो तुम बुलंदी पर पहुंच सकोगे। इमाम को हकीकतन मालूम है, वो मौला है, जाने चित की चोरी कि हम क्या चॉइसेस करेंगे अपनी फ्री विल से और क्या बनेंगे, इमाम जानते हैं। तो इमाम कहते हैं कि अगर तुम अपने दीन के रास्ते पर मुस्तकीम, मुस्तकीम बी कंसिस्टेंट, कि इस पाथ पे बराबर चलना है, अगर बराबर चले तो बुलंदी पर पहुंच जाओगे, आगे बढ़ जाएंगे, वो हम जानते हैं। यानी कि अगेन इमाम ने दो ग्रुप्स की बात कर दी। आई डू नॉट नो अगर हम ये नोटिस करते हैं कि नहीं, इमाम बार बार दो लोगों से बात कर रहे हैं, दो ग्रुप से। इमाम फरमाते हैं कि हम नहीं कहते कि तुम कैसे बनोगे, मगर हमें सब मालूम है अगर तुम दीन के रास्ते पर मुस्तकीम होकर चलोगे तो तुम बुलंदी पर पहुंच सकोगे, हाँ वो हम जानते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जैसे इमाम कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम आगे बढ़ने वाले हो, और फिर इमाम से फरमाते हैं तुम्हारा दिल और मकसद सूफी ख्याल में हो तो तुम पहुंच जाओ। सूफी मतलब जो तरीकत में है, सूफी लोग आमाल की पाकीज़गी में चौकस होते हैं। तो जो जो हमारी शुरुआत की लर्निंग है, सूफी जो है उसकी बहुत बेहतरीन मिसाल होते हैं। हमने बात की थी कि सूफी की ट्रेनिंग में सबसे पहले ट्रेनिंग क्या होती है? अपनी अना, अपनी ईगो को किल करना, मैं को खत्म कर देना, मैं है ही नहीं। यहाँ तक कि सूफी जो ट्रेनिंग होती है उनको जानबूझ के भीख मंगवाई जाती है कि जाओ भीख मांगो। अरे भाई क्यों भीख मांगना है, मुझे इल्म तो, मुझे सूफी बनना है, मुझे भीख मांगने की क्या जरूरत है? लेकिन किसी से मांगने के लिए अपने आप को नीचा करना पड़ता है कि भाई मेरे पास नहीं है, मुझे दो, मैं भूखा हूं मुझे दो, मैं गरीब हूं मुझे दो। इससे अना मरती है। और इसीलिए मुस्तजीब की जो ट्रेनिंग है, मुस्तजीब का जो सबसे पहला क्राइटेरिया है क्या? मेरे पास इल्म नहीं है, मुझे इल्म चाहिए। तो ये आजिजी का पहला लेसन है। जब तक हम ह्यूमिलिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकेंगे तब तक इमाम फरमाते हैं कि तुम इस चीज को नहीं पा सकते हो।
ह्यूमिलिटी की बात इमाम ने बैतुल ख्याल में भी की है। तो कितनी अजीब बात है कि हमें लगता है कि चलो ये सूफी बनने की बात है, इल्म की बात है, लेकिन इल्म और अमल इतना इंटर रिलेटेड है कि जैसे जैसे हम इल्म को समझते हैं हमारा अमल बेहतर से बेहतरीन होता जाता है। फिर इबादत में ख्यालात की बात, जो जो हमें तकलीफ है ना, बीमारियां हैं, जो भी मुश्किलात हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी अगर हम इल्म में ध्यान दे देंगे। ऑटोमेटिक इसका रिएक्शन है कि हमारा अमल का सारा मामला खुद ब खुद ठीक होता जाए। तो इमाम फरमाते हैं कि तुम सूफी में ख्याल करो तो तुम पहुंच जाओगे। इस काम में कई चीजों की जरूरत है, इस काम में कई चीजों की जरूरत है। इसमें बुलंद हिम्मत चाहिए, बुलंद हिम्मत। वो हिम्मत तुम्हारे में नहीं है। जब हम हिम्मत की बात करते हैं तो कलाम मौला मुझे याद आता है। कलाम मौला में पूरा चैप्टर है जिसके अंदर हिम्मत की बात की गई है, और आई थिंक कि हिम्मत के ऊपर लेक्चर्स भी हैं और शेयर किए जा सकते हैं कि हिम्मत अगर हम स्टडी करें तो आपको बहुत हैरत होगी, लिटरली यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर स्टडी करें कि हाउ डू आई गेट हिम्मत मौला। हिम्मत ऑल्सो कम्स फ्रॉम नॉलेज, ट्रू नॉलेज। There is no way one can emphasize enough the importance of true knowledge. Being consistent in gaining the true knowledge, moving ahead. इल्म होगा तो हिम्मत भी आएगी, हिम्मत आएगी तभी इस रास्ते पे चल सकेंगे। मौला फरमाते हैं कई हजार साल गुजर गए, इसमें कितने अफराद इस मकसद को पहुंचे। You know, if we look at these years 1899 और आज 2021 के एंड में बैठे हैं, कितने साल हो गए, कितने पहुंचे, कितने लोग पहुंचे उस मकाम को। तो ये जो है वो आंखें खुलनी चाहिए कि आंखें खुल जाए हमारी और हम जाग जाएं। इमाम फरमाते हैं हजरत ईसा, कई हजार साल गुजर गए, इसमें कितने अफराद इस मकसद को पहुंचे। हजरत ईसा, हजरत रसूल, मंसूर, पीर शम्स और दुनिया के दीगर चंद अफराद, वेरी फ्यू हैव रीच्ड देयर। इन सब का काम और रास्ता एक जैसा था, काम और रास्ता। The way they work, their objective of life and their path was same. क्या था वो path? जो वहां पहुंचे वो अपनी रूह के आशिक थे। किसके आशिक थे? रूह के। तो रूह मेरे में नहीं है भाई, सिर्फ आप में भी है, आप में भी है, आप में भी है। अगर आप रूह के आशिक हैं तो आप वहां पहुंच सकते हैं। मौला फरमाते हैं जो वहां पहुंचे वो अपनी रूह के आशिक थे, रूह के दोस्त थे, वो उस मकाम पर पहुंचे। अगेन जो हमने शुरू से बात की उन तमाम बातों को हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं कि रूह के आशिक कौन है, रूह के दोस्त कौन है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे हम इमाम से इश्क कैसे कर सकते हैं। हमारी अगर चाहत है कि हम इमाम से मोहब्बत करें, लेकिन इमाम के नूर का कतरा जो हमारे अंदर, हमारे आसपास, हमारे भाई बहनों में, हमारी फैमिलीज में, हमारी जमात में है, हम इतने भेदभाव करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बुराइयां करते हैं, जज करते हैं। हम आशिक नहीं है, हम तो दुनियादार हैं। जब तक हम अपने आप को बहुत चौकसाई से इस रास्ते पे बहुत ही क्रिटिकली देख के ठीक नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं, रास्ते पे नहीं चलेंगे, जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं सकेंगे। मौला फरमाते हैं दुनिया में कई मजहब हैं जो सूफी तरीके पर नहीं है। शरीयती, नसारा, यहूदी, हिंदू वगैरह तमाम मजहब वाले सूफी तरीके पर नहीं है। हमारा मजहब जो है वो बातिनी है। सूफी मजहब जो है वो तरीकत पर है, लेकिन दुनिया में जो मजहब हमारे आसपास हैं, ज्यूज हैं, हिंदू हैं, ये लोग जो है वो शरीयती हैं, ये लोग सूफी तरीकत पर भी नहीं पहुंचे हैं। उनके ख्यालात और बंदगी पस्ती की तरफ ले जाने के लिए होती है।
जो भी वो लोग ख्याल करते हैं, जो भी इबादत करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो नीचे जाने की। नीचे जाने की क्या मतलब? दुनिया में सुख पाएंगे, दुनिया में रहेंगे, आगे की कोई पड़ी नहीं। वो जो उम्मीद रखते हैं वो उम्मीद अच्छी नहीं है। उन्हें ये उम्मीदें हैं कि बेहेश्त में जाकर वहां अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत सी हूरें और बेहेश्त के सुख खुद को मिले। उनकी ऐसी उम्मीदें अच्छी नहीं हैं। ऐसी उम्मीदें शरीयतों की हैं। बेहेश्त भी दुनिया की मानिंद है। रूह की असल ख्वाहिश और रूह की असल ख्वाहिश है वो और ही जौहर है। तभी हम बात कर रहे थे कि भाई अगर हम जमात के अंदर भी अपने ऊपर लेके बात करते हैं ताकि समझे हम, दूसरों को क्रिटिसाइज करना या दूसरों को छोटा बोलना, बुरा बोलना आसान हो जाता है, लेकिन खुद पे अप्लाई करके खुद में से ये खामी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इमाम हमें फरमान के जरिए से समझ दे रहे हैं ताकि हम समझ सके, लेकिन हम इस फरमान को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे अंदर ये ख्वाहिश है कि हमें दुनिया में सुख मिले, दुनिया में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई मुश्किल नहीं आए, कोई पेन ना हो, बदन में कोई मुश्किल नहीं हो, तो ये तो ऐसा हो गया कि हमको बस जन्नत चाहिए। कौन सी जन्नत? जिस्म की जन्नत, दुनिया की जन्नत। इमाम ने साफ बोला बेहिश भी दुनिया की मानिंद है। तो क्या चाहिए तुमको? रूह का ख्याल है या इबादत करके आगे पहुंचने का ख्याल है? ये सवाल हमें करना पड़ेगा। तो जिस्म को जो भी तकलीफ है, जो भी दुनिया में मुश्किलात हैं, डोंट वरी अबाउट इट, इजियर सेड देन डन। हाँ, जब तकलीफ हो, गिरिया जारी सहारा नसीरा याद कर, आतिशे सोजाने में रह के खूब फरियाद कर। जब भी तकलीफ होगी दुनिया वाले इमाम को बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। हमारा कौन और साथी इमाम के अलावा? उसको सारा बयान करेंगे, गिरियाजारी करेंगे। जब गिरियाजारी करके उसको सब बता देंगे, दिल धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, फिर दोबारा अपने रास्ते पे आ जाएंगे। दुनिया की बातों से खुद की हिम्मत को नहीं तोड़ना है, रुक नहीं जाना है। दुनिया टेम्पररी है। दुनिया के अंदर अगर सुख मिलते हैं तो समझ जाना कि हम कैद में हैं, फंस गए हैं। क्यों? कि मोमिन के ऊपर तो हमेशा इम्तिहान होता है। मोमिन के ऊपर हमेशा इम्तिहान होता है। जो लोग दुनिया में मुश्किलात में हैं और इल्म के रास्ते पे हैं, वो जानते हैं कि ये इमाम की बहुत बड़ी रहमत है। क्योंकि इम्तिहान में रहेंगे तो हम मौला को बहुत याद करेंगे, और मौला को याद करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, रूह की कमाई भी करेंगे और हासिल करेंगे। दुनिया के अंदर सुकून सुख से रहते हैं तो मौला फरमाते हैं कि बेहिश्त भी दुनिया मानिंद है। और दूसरे तमाम जो शरीयती हैं वो लोग इबादत तो करते हैं, मजहब को भी पालते हैं, दसों भी देते हैं उनके हिसाब से, लेकिन उनकी तमाम कमाई जो है वो नीचे जाने की, उनको आगे का कोई फायदा नहीं मिलता है। क्यों? कि वो बातनी तरीके में नहीं है, इमाम की बैयत में नहीं है, इमाम के साथ नहीं है, तो वो साइकिल के ऊपर पीछे हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहां मोनो रियलिटी का टाइम और मकाम आ चुका है। किन के लिए? जो लोग हकीकत को पहचानेंगे, हकीकत को समझेंगे, वो जान जाएंगे कि रूह की जो असल ख्वाहिश है वो और ही जौहर है, वो और ही हकीकत है। यहाँ पे रुकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, तो आप आगे आए। થેન્ક યુ નિયામતબેન. शुक्र मौला। બહુ સમજ આપી આજે કે જ્યારે અમે બંદગી કરીએ છીએ ત્યારે રૂહનો ખ્યાલ હોય છે કે દુનિયાનો, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ઈ તમે કહો છો ને કે હવે આ રૂહની જે અસલ ઉમેદ છે તો બહુ બીજી જાતની છે. ઈ અમારા મગજમાં કેવી રીતે ભરવાનું, આટલા ફાઇન ફરમાન છે. તમે કહો છો કે અમારો દીન બાતુની છે, તો આટલા ફરમાન છે. હું મારા પોતાને કહું છું ઇમામ અમારો હયાત છે, તો આટલી હું પાછળ છું. કેટલી અફસોસની વાતો છે આ, કે આજે મેં આ સાંભળી કે રૂહની તો અસલ ઉમેદ બહુ બીજી છે.
અને આ જે તકલીફો આવે છે તો ઉલટાનું અમે આગળ વધીએ. સુખ હોય તો ખુદા તો ભૂલાઈ જાય છે. સો ઈ પોઈન્ટમાં મને થાય છે કે મને એટલો વોક હાલતી નથી હું, હાલું કેવી રીતે ફાસ્ટમાં, મને તમે એટલી હિંમત આપ્યા છો. પણ I still don't know, you know. You know. The first thing is that you say, I know. Because I mean, as soon as you said it, you know it now. Yes, you realize it, so you're expressing, you're sharing, so thank you for sharing, but you do know now. We have to become so conscious and we have to say, I believe, yes, I believe, I do know, I can do it, because it's not me who's going to do it. I got to use my body, push my body to do what I'm told to do. Ilmu amal, and the progress, tarakki, is in his hand, but I will do. yes, I'm not less than. You are princess of Maula Baba. You are Shehzadi. You are his Ruhani, beloved Ruhani child. How can you be less than anybody? So you are very capable. You are able to do anything you want at a level of spirituality. Believe, believe. Amen, 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 amen. But before, I don't know whether somebody has a question, but હું છે ને તમારી જે દુઆ અઝીઝભાઈ સાથે મને મીનિંગ બરાબર સમજ ન પડતી હતી, હવે મને સલીમભાઈ મોકલ્યા છે એમાં એટલી સમજ પડે છે. હમણાં સુધી દુઆ મને સમજ ન પડતી હતી. So I'm up to 3 parts. I'm going every day doing something, you know. હું તમારો અવાજ દરરોજ સાંભળું છું. It's too good. યાલી મદદ મોલા તમારી ઉમેદ પૂરી કરે ને સેવા તમને કરાવે. Ji. Anyone else? Ali Madad. Allah Shukr Mola, as usual, you know, very, very emotional sessions. Tadin, bo maja આવે છે ને, maybe I'm staying here with him so he can listen to. You know, Shukr Mola, no, I know all this, we know, but you know, it's not that easy. I know we always say I can do it. Mola, tu amari સાથે છે, તું હિંમત દે, તું કરાવ. But then also, sometimes it's a little hard, you know, but Mola himmat ape, you know. So let's change the language. Let's try to do this. But let's do this. આપણે બધા છે ને આજે જેટલા બી છે ને, we will not say anything negative about ourselves. We do right. know. Okay. We have so many flaws, so many weaknesses, so many difficulties around us. So remember, આપણે you know, languages માં મસલો છે, આપણે ઉર્દુ સેશનમાં છીએ. We got to say, I'm not able to do it, Maula Baba, but I know you can do it. So help me do it. We will all do it together and we can do it. Just say to Maula Baba that, Maula, it is possible, because you are saying it, it is going to happen. That's how we are going to say. So today, by like, if few of you can say these things positively, I would love to hear. We are capable of doing it. We will do it. You know why? Because Maula wants us to do it. Maula help us. Amin. Maula's dua is with us, so it will happen. Amin. We can do it, inshallah. Inshallah. Another thing is, Nyamat Ben, તમો કીધું ને તમો રૂ દોસ્ત ને જોવો. So that they're difficult છે, કારણ કે રૂ શું ચીજ છે, પેલા ભૂલાઈ જાય છે કે I'm not the body, હું તો soul છું. જો તરત જ જરાક યાદ આવે છે ને, તો બીજાને જોઈ છે તો ના, રૂ દોસ્ત છે, તો એના ફ્લોઝ તરત જ ભૂલાઈ જાય છે. તમો કીધું ને એટલું પાઇતે સમજાયું. એ મોલાનો નૂરનો કતરો છે, કેવી રીતે અમે એની કરી શકીએ, એની કેમ કોઈ એપને કેમ ઢાંકવાનું છે, નહીં? યાદી ભૂલાઈ જાય છે, યાદગીરી કે આ તો રૂ છે, અમે બધા અમે એક જ છે, નહીં? I forget very quickly. So, you know, there are two ways of doing it, right? So for some people, it is easier to be very critical of themselves कि भाई गिबत नहीं करनी है, जज नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं बोलना है. That's one way of doing it, right? Yes. Okay. The other way is that because I love my Maula Baba and everybody has the same soul within them, I am looking at everywhere. They all are my Maula's particle of the soul. They are all princes and prince in front of me.
How Yes. can anyone say or think anything? So whatever works for your heart, for your mind, please Yes. do take that way of thinking and work on it. Yes, friends, I will share the dua she's mentioning. I will tell Naveen Saiba to share it on the group so you'll all get it. Okay. Anyone else? Anything else? Thank you. Shukar Mola. That. When you say Katra, Katra is the particles of Noor, right? But apna Katra, what? Urdu mein Katra katra means drop, and it is particle. Yes, you're right. okay. Okay, Shukar Mola, no, very, very inspiring. You know, we look forward. Bola, humbleness से તમારામાં અમારામાં આપણામાં એવી જ આપે. બોલા આ સેવાનો બદલો બને જાનમાં ઇનાયત ફરમાવે. વધારે સેવા કરવા આપણને બધાને હિંમત, શક્તિ, પ્રેરણા, તંદુરસ્તી અને મોકા આપે ને મોલા ઈમાન દીદાર નસીબ કરે. Sorry, નિયામત બેન, last one તમો હિંમત નું કીધા ને, I do remember કે હિંમત ના તમો કર્યા છો sessions નહીં, કલામે મૌલાના, ઈ કદાચ સલીમભાઈ પાસેથી મળી શકશે નહીં? તો ઈ forces કે કેવી રીતે હિંમત બાંધવાની નહીં? હા, તમે કામળે સરથી બી માંગી શકો ને નવીન સાહેબાથી માંગી શકો. ઓ ઓકે ઓકે. એ લોકો બે પાસે હશે. જેને બી તમે કમ્ફર્ટેબલ લાગે માંગો તો એ મળી જશે. હા, તો પછી ઇન્શાલ્લાહ મોલા અમને મદદ કરશે અને તમારી સેવાથી અમે આગળ જાશું. આમીન આમીન. આપણે બધા ભેગા જ આગળ વધશું અને મોલાની મદદ આપણા સાથે છે. આમીન. Amen. Shukr, shukr. ક્વેશ્ચન દેખાડો છે ગંજ નો મતલબ શું? ગંજ નો મતલબ છે ટ્રેઝર, ખજાનો. ખુદાનું એક નામ છે ગંજે મખફી, છુપા હુઆ ખજાના. So ganj means khazana, treasure. Right? Okay, so I am happy to hear that everybody is motivated and we can do this. We believe our Mawla is with us and we can do this. Inshallah. Amin. Amen. ઇન્શાલ્લાહ. Amen. આમીન આમીન. Shukr, shukr. યાલી મદદ. Yali madad. Yali madad. Yali madad. Yali madad. Yali madad.